Okay, welcome back, student. This is our chapter number first, that is your chemical reactions and equations, part 10 from the class 10 CBSE board and your NCERT syllabus, right? Already we discussed about the decomposition reaction, right? Now, here we will discuss our third type of the decomposition reaction, that is the photolytic decomposition reactions, also called as your photolysis, as well as your activity 1.8 photo decompositions of this silver chloride we will discuss, as well as we will discuss upon above all concept previous year questions, right, as well as the questions from the NCERT book page number 10, right, here, and in text questions, and it's a detailed answer we will discuss in this lecture number 10, right. Our third point, that is the photolytic decomposition or photolysis, we will discuss when any chemical compound decompose by absorbing the light energy. अगर कोई भी केमिकल कंपाउंड ले लीजिएगा, वो एब्सॉर्ब लाइट एनर्जी करने के बाद डिकम्पोज होता है, राइट, टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, elements or compounds are formed, then that reactions is called as an your photo decomposition reactions or photolysis. मतलब कोई भी केमिकल कंपाउंड लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब करने के बाद दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में ब्रेक होगा, उसको हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस रिएक्शंस ऐसा बोलेंगे. फॉर एग्जांपल, टू मॉलिक्यूल ऑफ AgBr silver bromide undergoes the sunlight decomposition. We get a two molecule of Ag, that is a silver, which is a gray in color, and the Br2 bromine in the gaseous molecule. How it will happen with the Ag, Br, this is your Ag and Br. What happens, student? This Ag Br bond is a break with the help of the sunlight, and you will get the separate Ag, 2 Ag, that is why 2 Ag will be there. Then this Br I got here Br2 molecule, right? So this is the one. Same for the chlorine. Two molecule of AgCl silver chloride undergoes the sunlight decomposition. I got two molecule of Ag silver with a gray color and a chlorine with a yellowish in color. Right. Now this is silver bromide reaction. That reactions we are using in the black and white photography. Right. Now how? You know, student, old camera, that a camera have one photographic film. एक फोटोग्राफिक फिल्म रहता है, एक तीन फिल्म रहता है, उसको हम रील बोलते हैं. और वो जो रील होता है, वो रील इज कोटेड विद सिल्वर ब्रोमाइड, राइट. और उस सिल्वर ब्रोमाइड पे अगर और उस रील पे जब हम लाइट एक्सपोज करते हैं तो वहां पे एक इमेज फॉर्म होता है, और उस इमेज को हम निगेटिव बोलते हैं और लेटेंट इमेज हम उसको कहते हैं. That latent image is also called as a negative, and that negative, if we deep in the hyposolution is also called as a sodium thiosulfate solution, we get the permanent image. So that type of the photolytic decompositions reactions we are using here means your silver bromide, that reactions we are using in the black and white photograph. Simply, any chemical compounds are breaks by absorbing the light energy into the two or more than two substances in the elements or compounds, that is called as a photolysis or photolytic decomposition reaction. Two reactions already we discussed here, and AgBr reaction is used in the black and white photography. वो जो रील होता है, फोटोग्राफिक फिल्म होता है कैमरा का, वो सिल्वर ब्रोमाइड से कोटेड होता है. जब उसके ऊपर लाइट पड़ता है तो इमेज डेवलप होती है, उसको निगेटिव इमेज और लैटेंट इमेज हम कह सकते हैं. उस निगेटिव को हाइपर सोल्यूशन में और सोडियम थायोसल्फेट में अगर हम डीप करेंगे तो परमानेंट इमेज तैयार हो जाएगी. हम यहाँ पे अभी एक्टिविटी 1.8 देखेंगे. एक्टिविटी 1.8 मतलब क्या है? एम है टू स्टडी द फोटो डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, राइट. यहाँ पे हमको सिल्वर क्लोराइड को फोटो डिकम्पोज करना है. मटेरियल रिक्वायर्ड मेरा चाइना डिश है, सिल्वर क्लोराइड है एंड सनलाइट है. यस, यहाँ पे मैंने एक चाइना डिश लिया है, ओके, सनलाइट प्रोवाइड किया है और उसमें मैंने क्या किया है, सिल्वर क्लोराइड दिया है. ये मेरा प्रोसीजर हो गया. अब इसका ऑब्जर्वेशन क्या है? डियर स्टूडेंट, सिल्वर क्लोराइड जो है, if that silver chloride undergoes the photolytic decomposition reaction, that will go under the convergence of the silver and the gray color is formed, right. Now silver chloride, why this will happen? And this is due to happen, silver chloride undergoes the photolytic decomposition by absorbing the light energy and undergoes the photo decomposition, and we got the silver metal and chlorine gas, and silver metal color is a gray color and a chlorine, that is your yellowish gas, is evolved out. For example, chemical reaction, two molecule of AgCl silver chloride
sunlight decomposition, we got a two molecule of Ag silver and that is a gray color, and a Cl2 with a yellowish color. How it will happen? AgCl same will be there, right? Ag is a separate out bond, is a break with the help of this HV or the photolytic condition, that is your sunlight. You will get a two molecule of Ag and a Cl2 gas, so we get it. Right. Now what happens, student? Here conclusion is that if silver chloride undergoes the photolytic decomposition in presence of a sunlight, that silver chloride breaks into the silver matter, which is a grayish color, and a chlorine gas, which is in yellowish nature. Right. This type of the all the decomposition reactions are happen with the help of the heat, light and electricity, and that energy is absorbed. All the decomposition reactions are absorbed energy in the form of the heat, light and electricity for the breaking down the bonds between the reactant molecule, right? Therefore all the decomposition reactions are endothermic reactions, and those are maximum of the endothermic reactions, heat is absorbed. This is the conclusion related to the silver bromide reactions, right? So in a short way, I can tell in the decomposition reactions of a silver bromide, the silver chloride color is a gray color and the chlorine color is a Cl2 with a yellowish gas. We got it, right? So this is about the and all the endothermic reactions are the decomposition reactions are okay. So rate of the reaction is the slowest in the case of the silver iodide. So here same you can take for the AgI, right? Break down the bond between that and you will get a two molecule of Ag, and I2 you will get it, right? So question number 46 is that the following diagram display the chemical reaction. Observe the carefully and answer the following question. नीचे मैंने एक रिएक्शंस दिए, एक डायग्राम दिए, उसको ऑब्जर्व करो और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये सनलाइट मैंने प्रोवाइड किया है, यहाँ पे चाइना डिश लेयर, उसमें सिल्वर क्लोराइड का कलर मैंने ऐड किया, तो क्या आता है मुझे ये बताइएगा, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट विल टेक प्लेस एंड डिफाइन इट। अब यहाँ पे मेरा फोटोलाइसिस है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसका डेफिनेशन ऑलरेडी बताया है, राइट? व्हाट इज द कलर चेंज इन द साल्ट? सो कलर चेंज इज अ ग्रे कलर ऑफ द silver, you will get it. Second number, this is for 1 mark, okay? Then write the chemical equation that takes place. क्या रिएक्शन होता है उसको लिखिएगा, लिख दिया, ओके? उसके बाद मेंशन द वन कमर्शियल यूज ऑफ दिस साल्ट, कोई भी एक कमर्शियल यूज आप लिख दीजिएगा, ये आपके होमवर्क के लिए है, राइट? 2012 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आए, 1 मार्क एंड 1 मार्क यहाँ पे हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, a light sensitive compound X of the silver is used in black and white photography। अब स्टूडेंट ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा है? AgBr है, और एक्सपोजर विद सनलाइट कलर चेंजेस टू ग्रे, करेक्ट है। एंड CBSE 2011 में क्वेश्चन पूछा है 3 मार्क्स के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों कौन सा कलर है? वो AgBr है। अब दो मॉलिक्यूल लिए थे AgBr क्या होता है? टू मॉलिक्यूल ऑफ AgHV मतलब सनलाइट है, एंड प्लस Br2 आता है, राइट? ये ग्रे कलर में होता है। ऑब्जर्वेशन करेक्ट है। आइडेंटिफाई X मेरा सिल्वर ब्रोमाइड है, 1 मार्क। राइट द केमिकल रिएक्शन, ये लिख दिया केमिकल रिएक्शन, 1 मार्क मिल गया। एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये फोटोलाइसिस है, और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, 1 मार्क। 1 mark, 3 mark, you will get it, right? Question number 48. Write the chemical equation involved in the chemical reaction. White washing. अब white washing मतलब क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ पानी का रिएक्शन करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आएगा, ये व्हाइट वॉशिंग है। बाद में वो बिल्डिंग पे अप्लाई करो, वो कार्बन डाई एक्सेप्ट करेगा, कार्बन डाई अगर एक्सेप्ट करेगा तो आपको क्या मिलेगा? CaCO3 मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, और बिल्डिंग की वॉल चमकने लगेगी। ये एक 1.5 मार्क के लिए है। एंड ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में अब वो ऑल रिएक्शन है, वो 1.5 मार्क के लिए है। CBSE बोर्ड टर्म 1 में, CBSE 2012 में 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन यहाँ पे आया है, राइट? देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाई द फोटोसिंथेसिस इज कंसिडर्ड एज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट? CBSE NCERT 2011 में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है। अब फोटोसिंथेसिस क्यों होता है? सनलाइट से होता है, तो वो एक प्रकार की लाइट एब्सॉर्ब करता है, इसीलिए वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 50, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। CBSE 2012 में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है, क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड को एक्सपोज करो सनलाइट से, सिल्वर एंड ब्रोमीन मिल जाएगा।
पता है हमको, ऑलरेडी देख चुके हैं। सिर्फ मैं ये क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ कि हमने जो कंसेप्ट देखी है उस पे किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 51, गिव द एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन का वन एग्जांपल दीजिए एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का वन एग्जांपल दीजिए एंड राइट द रिलेवेंट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आल्सो। सीबीएसई 2012 में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आया है, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन का एक रिएक्शन और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का एक रिएक्शन। इसमें हमको एक एक मार्क के लिए क्वेश्चन आए हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 52, राइट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन और व्हाट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सीबीएसई 2011 में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आया है। और सिल्वर क्लोराइड को आप एक्सपोज करोगे तो विच टाइप ऑफ रिएक्शन यू विल गेट। सो वो आपकी फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइसिस रिएक्शन, दैट्स ऑल। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 53 है, व्हाई द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड एज एन अपोजिंग ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सीबीएसई 2011 में एनसीईआरटी को 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है। अब स्टूडेंट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल सब्सटेंस है, सिंगल सब्सटेंस को ब्रेक करके एक, दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलते हैं। पर कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ए प्लस बी मान लो कंबाइन करोगे तो आपको सी मिलेगा। दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस को कंबाइन करके सिंगल सब्सटेंस मिलता है। ये आपका है कॉम्बिनेशन, और सिंगल सब्सटेंस को ब्रेक करके आपका है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यस, तो कॉम्बिनेशन में दो सब्सटेंस को कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, और डिकम्पोजिशन में क्या होता है, सिंगल सब्सटेंस को ब्रेक करके दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलते हैं। इसीलिए वो क्या है, अपोजिट टू ईच अदर है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, व्हाई द सिल्वर क्लोराइड इज स्टोर्ड इन द डार्क बॉटल। डीडीई 2017 1 मार्क के लिए, मतलब सिल्वर क्लोराइड आप डार्क बॉटल में स्टोर क्यों करते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जो डार्क बॉटल होती है, दैट डार्क बॉटल क्रिएट्स द बैरियर इन द पाथ ऑफ द लाइट। अगर हम जिसमें सिल्वर क्लोराइड को रखे हुए जिस बॉटल में, तो उस बॉटल में जो लाइट आता है वो डार्क बॉटल अवॉइड करती है, लाइट सिल्वर क्लोराइड तक नहीं आने देती है। इससे क्या होता है, light cannot reach to the silver chloride, and that is why the silver chloride are not decomposed into the Ag and Cl2. So to avoid these decomposition reactions, we are using the dark bottle to store the silver chloride. That's all. Next question मेरा same, question number 55 है, right? Why the hydrogen peroxide is kept in the colored bottle? हाइड्रोजन peroxide हम colored bottle में क्यों रखते हैं। सीबीएसई बोर्ड 2010 में 11 में 1 मार्क के लिए, बोर्ड फर्स्ट के लिए, टर्म फर्स्ट के लिए क्वेश्चन आया है। अब दोस्तों क्या होता है, हाइड्रोजन peroxide undergoes the decomposition reactions and H2O2, that is the hydrogen peroxide, decomposes into the water molecule and oxygen. H2O2 को डिकम्पोज करके हमको वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट। अगर ये हमको डिकम्पोजिशन प्रिवेंट करना है तो हमको कलर्ड बॉटल में स्टोर करना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हम कलर्ड बॉटल में स्टोर करेंगे तो ये जो सनलाइट है वो उस पेरोक्साइड तक नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो डिकम्पोजिशन नहीं होगा, नहीं होगा तो H2O2 एज इट इज रहेगा। तो अगर हम H2O2 को सनलाइट से डिकम्पोज करोगे तो H2O और वाटर हमको मिलेगा। कैसे मिलेगा, यहाँ पे देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। HOOH, HOOH यहाँ पे आ गया। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, पर ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन बच जाएगा। 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर चले जाएंगे और 1 ऑक्सीजन एटम इज कमिंग, मॉलिक्यूल इज कमिंग आउट। सो ये अगर हमको डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं करना है तो हमको क्या करना है, कलर्ड बॉटल में स्टोर करना है। दैट कलर बॉटल विच प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, carry out the following activity, that is NCERT book page number 10. टेक द 2 मिलीग्राम ऑफ द बैरियम हाइड्रोक्साइड। आप एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिएगा और एक टेस्ट ट्यूब में आप क्या करो, बैरियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन ले लो। राइट, उसमें अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन ऐड करो और ग्लास रॉड से आप उसको स्टर करो। व्हाट डू यू फील, and touch the bottom of the test tube with the help of your palm, and what do you feel, whether the reaction is exothermic or endothermic। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो वो बीकर जो है बॉटम है वो हॉट लगेगा और रिप्रेजेंटेशन उसका माइनस साइन से करेंगे प्रोडक्ट साइड में। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन आता है तो बॉटम उसका कूल हो जाएगा और
उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे निगेटिव साइन से। एंडो को निगेटिव करते हैं, एक्सो को पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पे, राइट। मतलब अगर बैरियम हाइड्रोक्साइड को हम अमोनियम क्लोराइड से के साथ ऐड करके ग्लास रॉड से स्टर करेंगे तो और बॉटम को टच करेंगे तो कूल हो जाएगा। अगर कूल होता है तो उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि जो भी एनर्जी वो अंदर एब्सॉर्ब करके ली है, राइट। और एंडोथर्मिक रिएक्शन कूल होती है तो हमने उसको माइनस साइन से रिप्रेजेंट करना है, राइट। एंड दिस हैपेंस ऑल ड्यू टू द एंडोथर्मिक रिएक्शन, सो माइनस साइन वी आर रिप्रेजेंटिंग एट द प्रोडक्ट साइड, दैट्स ऑल। ये है यहाँ पे। नेक्स्ट मेरा ऐसा है क्वेश्चन, क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 10 पे है। एक नंबर क्वेश्चन है, अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। एक्स करके सब्सटेंस है वो व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं, राइट, ओके। अब व्हाइट वॉशिंग मतलब क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो बिल्डिंग पे वो अप्लाई करो, कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा, वो होता है उसको, राइट। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स अ फॉर्मूला। अब व्हाइट वॉशिंग में हम यूज करते हैं क्विक लाइम को, उसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। उसका फॉर्मूला है CaO। मतलब ए, अगर क्वेश्चन आता है तो 1 मार्क यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इतना करोगे तो आइडेंटिफाई और उसका फॉर्मूला। राइट द रिएक्शन ऑफ एक्स विथ वाटर। अब एक्स मतलब कैल्शियम ऑक्साइड है, उसका पानी के साथ रिएक्शन करो। CaO प्लस वाटर मॉलिक्यूल HOH, यहाँ का ऑक्सीजन, यहाँ का हाइड्रोजन OH, और यहाँ का एक OH, मतलब क्या हो गया आपका Ca। सो ये मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसको हम स्लेकर लाइम बोलेंगे और उसको हम व्हाइट वॉशिंग भी बोल सकते हैं। अप्लाई करने के बाद वॉल पे अप्लाई करो, वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट तैयार होगा। ये मेरी हीट इवॉल्व आउट हो गई, मतलब मेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब ये पॉजिटिव साइन से हम रिप्रेजेंट करें, दैट्स ऑल। सो व्हाइट वॉशिंग मतलब एक कैल्शियम ऑक्साइड है, उसका पानी के साथ रिएक्शन करो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, सिलिकॉन लाइम मिलेगा, व्हाइट वॉशिंग हमको मिलेगा, राइट। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, why is the amount of a gas collected in a one test tube of in the electrolysis of water than the amount of the gas collected in other, and name this gas। मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे हमने 2 टेस्ट ट्यूब लिए थे। एक टेस्ट ट्यूब अटैच था एनोड को, उसका पॉजिटिव साइन था। एक टेस्ट ट्यूब अटैच था कैथोड को, उसका निगेटिव साइन था, राइट। और एनोड पे हमारा डिपॉजिट हुआ था ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज, कैथोड पे डिपॉजिट हुआ था हमारा हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज। मतलब एनोड और ऑक्सीजन निगेटिव पॉजिटिव एकत्रित, हाइड्रोजन और कैथोड निगेटिव पॉजिटिव एकत्रित आता है, राइट। अब यहाँ पे हाइड्रोजन अगर आता है 2 लीटर तो ऑक्सीजन 1 लीटर होता है, क्योंकि जब एक वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलता है, राइट। मतलब हम इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम वाटर का करेंगे तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हमको बाहर मिलेगा। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का डिकम्पोजिशन जो रेशियो है बाय वॉल्यूम, दैट इज योर 2:1। तो अगर ऐसा होता है तो गैस कलेक्टेड जो हाइड्रोजन है वो 2 लीटर इन कैथोड, कैथोड साइड, और 1 लीटर इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन एनोड साइड है, क्योंकि उसका रेशियो 2:1 में मिलता है हमको। ये हमें यहाँ पे देखने को मिलना है। अभी तक स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अगर कुछ कमेंट है, अच्छे बुरे कमेंट्स है, कुछ सुझाव है तो आप हमारे पास ज़रूर पहुँचाएगा। थैंक यू वेरी मच।